great afternoon for you all, and I hope you have been able to enjoy the earlier session as much as an amazing session. And this session is going to be really the climax of all the sessions that we had together. I most respectfully welcome Kulguru, Professor Suresh sir. Yes. My dear friends, this session is on actual learning of life, lessons of life. So far, we did philosophy, we talked on psychology, we did neuro-linguistic programming. Several things we did on an outer periphery of the brain or mind. This session is coming from one of the topmost policy movers, makers, and motivators of the policy makers of the country, the Prime Minister, President, the IAS, IPS. They seek guidance from a person like Professor Suresh. And he is speaking today from the heart on the experience of life, the lessons that are learned from the life, the school of life itself. It's an amazing experience. Keep away all your gadgets, all your multitasking, you stop totally and confine yourself just for 1 hour to get the crux of the success and the commitment of a person of his repute. It's an unmatchable opportunity, which I invite you all. Thank you, sir, for this kind gesture. I request Dr. Sunita Dwivedi to kindly give a brief introduction because some of the audience might not be very brief. Thank you. Thank you, Professor Agarwal. Welcome, sir. Honorable Vice Chancellor of our university. As you all know, the topic is post-corona life lessons. हम अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, that is topic is regaining effective creativity and peace of mind. हमारे पूरे जीवन में क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए हम जो बातें सुन रहे हैं लगातार 2 दिनों से, ये एक अचानक आई स्थिति थी कोरोना की और जो सब लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करके गई है. इसको लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो बात है वो करना जरूरी थी और इसके लिए हमारे पास इससे अच्छा कोई नाम हो ही नहीं सकता था. Because the government of Madhya Pradesh has nominated sir as member of its COVID advisory committee with a team of doctors, our Kulguru, Professor K.G. Suresh sir. All the participants who are present here, we all are familiar with sir. Sir is always telling us कि बहुत brief में बोलना, बार-बार नहीं बोलना, लेकिन जो हमारे participants online attend कर रहे हैं, जो हमारे faculties इसको attend कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा introduction sir का रखना चाहूँगी. Professor K.G. Suresh is senior journalist, columnist, educationist, socio-political commentator, and communication strategist. Apart from this, in many committees, he is jury member. Academic में बहुत सारे board of studies और academic council के member हैं. Many awards are because list पढ़ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो many awards are on his name. कुछ जो जरूरी है उनकी भी बात करूँगी. गणेश शंकर विद्यार्थी award for outstanding contribution to journalism by केंद्रीय हिंदी संस्थान, Ministry of Education, Government of India. Specialization public health communication में सर का specialization है. Specialization in many area, लेकिन जिस पर उन्होंने बहुत काम किया है और अलग से ऑक्सफोर्ड यूके की उनके पास इसकी क्वालिफिकेशन भी है, इसलिए विशेष तौर पर जिक्र करना था कि his specialization is public health communication. मैंने बताया है कि कोविड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के. So with great respect, I request Kulguru Professor Suresh to please address us on the topic, which is
very, very relevant in this time, post-corona life lessons. Thank you so much. Thank you, Professor Sunita Dwivedi. Thank you, Professor Agarwal, who is helming this entire FDP. The honorable heads of department and professors and esteemed faculty members from all over the country who are taking part in this 5-day FDP on a very different subject. Usually you do FDPs on subject related, whether it is related to education, national education policy, research methodology. But this is one of its kind sessions where we are talking about life skill management. So when Professor Agarwal discussed with me, generally in every function, as is the protocol in every university, I'm there at the inaugural and valedictory. But Professor Agarwal insisted that there should be one session. I said that this is not my core area. Then he said, no, we want you to talk about something related to this. So I said, look, Professor Agarwal, I do not wear a white cloth or a saffron cloth. I'm not a psychologist. I'm neither a sociologist. So if you ask me from a purely subject point of view, I'm not a subject expert. But I have seen life from very close quarters. I lost my parents at a very young age. I got afflicted by some dreaded diseases at a very young age. And I've been able to overcome that. I had a lot of problems in my life. But I was able to overcome them because I believed in certain things that helped me. And perhaps that is what I thought, that I never had a forum where I could, kind of share this with anybody on a public platform. Some people who are known to me know some of the aspects of it. So, and I've always felt that, there is that दुनिया में इतना गम है. Wait. Just 1 second, sir. I want you to be focused because it's quite widely. Sorry for that. Yeah. Because it was quite wide. As they said, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है. And way back in my life, young age, I learned that, that I had the boots, I had the blues that I had no shoes. I had the blues that I had no shoes. Until upon the street, I met a man who had no feet. So I was complaining that I had no shoes, but I met people who had no feet. So what am I complaining about? So I thought that in this session, I will certainly share, I won't call them tips. These are lessons I learned the hard way. And perhaps telling it would amount to kind of a sermonizing. So I'm not sermonizing. I've not read any book. I'm not a very, very, spiritually oriented person, somebody who has, read all the religious texts and, somebody who's an authority on scriptures. But these lessons I have learned in that university called life, which I believe is very important. In fact, when some of the religious leaders, gurus give pravachan and they talk about
how to deal with your family. So I hear some of my friends say कि जिनको family जिन्होंने कभी life lead नहीं किया वो हमें क्या बताएंगे family के बारे में, क्योंकि family lead करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है. So इसी तरीके से what are the things that you have learned? So I thought that maybe this is a God-given opportunity that Professor Agarwal has asked me to share some thoughts. If even one idea helps any one of you, I don't know. The whole idea is not to help or anything like that. I'm just sharing. I'm sure most of you have known these aspects. There's nothing new I'm going to say. I'm not, Buddha the enlightened. But these are things that I learned. And I learned some of them the hard way. So I called it an experiential journey through my life, how certain I'm going to, because life has been, it's over 5 decades. So I cannot, sum it up in 50 minutes, but let me try to share some thoughts. One lesson that I have, one big lesson, and that is Professor Sunita Dwivedi referred to Corona. And I think that is one lesson that I learned much before Corona. We often don't count our blessings. We keep cursing all the time. मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. जो आपको मिला है वो कितने लोगों को नहीं मिला. What you have got, life has not given to some of the basic things. When I see people actually without feet crawling on the street, people visually challenged people actually finding it difficult to cross a road, I realized that God has been so kind to me. So kind to me. I have learned. I can see with both my eyes. I can see the beauty of the rainbow. I can see the greenery. I can see the lake. I can see the, the skies in the night, the stars in the sky. How many people, millions of people in this world are deprived of that beautiful sight throughout their life? For a minute, if we are not able to open our eyes, I know, last week I'd gone to my ophthalmologist for a routine checkup. And he said that, sir, thoda aankhein dilute karni hogi. My immediate concern was, kitna der baad pad paunga? He said ki, sir, thoda time to 2-3 घंटे का गैप तो लगेगा. अभी पहले की तरह नहीं है. पहले 2 दिन बाद आपको मिलता था आप दवाइयां, अब वैसे नहीं है. डायलेट हो जाएगा सर, लेकिन डायलेट होने के बाद 2-3 घंटे का गैप के बाद वो ठीक हो जाएगा. Then I was thinking, 2-3 घंटा, अच्छा जबकि दिख रहा है सब कुछ, बस पढ़ नहीं पाऊंगा. Imagine somebody who knows in childhood that the whole life he cannot see anything. I'm really thankful to the Almighty, to my parents, to everybody, that He gave me these 2 eyes. When I see people who don't have hands, I thank God that He has given me hands. Hands with which I can shake hands, I can eat food, I can write. So many things I have done. And this is possible because I've got hands. I talked about, I had the blues that I had no shoes until upon the street I met a man who had no shoes. People who cannot imagine running. When I was hardly 6 months, I was afflicted by polio. My parents nursed me with God's grace. I'm among the few cases in the entire country where I was able to recover from polio. I today run around. I can, people say that, "Arey Pati ji, itne सक्रिय, itne active, दिन रात भागते रहते हैं, दुनिया भर घूमते रहते हैं." Please, अगर वो पोलियो से मैं नहीं निकल पाता तो शायद मैं भी एक जगह बैठ जाता, शायद उन बंधनों में. I feel that God has been kind to me. I thank Him for that. I thank Him daily.
I'll come to that point, but count your blessings, that's important. We often are so full of complaints. सिस्टम ने मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. जो मिला है उसके बारे में तो हम सोचते नहीं, इतना कुछ मिला है बहुत लोगों के तुलना में. नौकरी है तो हम शिकायत करते हैं कि अरे उसको मुझसे ज्यादा मिलता है, ये भी कोई नौकरी है क्या, उसकी नौकरी देखो, अरे बेरोजगार करोड़ों में है, but you have got a job. Are you counting your blessings? But we don't. We are the most ungrateful mankind, human beings. Even if you give food to the dog, it will wag its tail. But hum nahi. Because we are ungrateful by nature. ये नहीं कि आपसे कोई ungrateful है, मुझसे, हमारी प्रकृति ही ऐसा है. जो हमें blessings मिले हैं उसके बारे में हम सोचते नहीं. It's important that we count our blessings. किसी दिन बैठ के लिखिए. I suggest it as an exercise. That what are the things that I have got which others have not. I am not talking about positions, vice chancellorship, director generalship, this, that. No. I will come to that later. But the basic things of life which I have got. I can complain that I lost my parents at a very young age. Within a gap of 6 months, I lost my mother. What is that? Huh? At what age? I was 21 at that time. And at the peak of my career, you know. Within 6 months, yeah. I can complain that, you know, so many people are lucky, their parents are alive till 95, you know. I can feel jealous, I can feel, but I remind myself there are millions of young children in this country who do not know who their parents are. They are in orphanages. My parents gave me education, they brought me up, they gave me so much. God has been kind to me. God has been kind to me. Then why should I complain? Why should I complain? You know, हम हमेशा ऊपर की तरफ देख के कंपेयर करते हैं. जरा नीचे देखिए. Just look below. We often tend to compare, oh, Ambani has got this Antilla and all that. Look at my this thing. I have got only a 1-bedroom apartment. So many homeless people who sleep on the streets. I'm fortunate that I have a 1 BHK. I'm really fortunate, blessed. We don't bless. We don't count our blessings. It's important that we count our blessings. We got loving parents, we got loving siblings, we got loving. Every relationship may not have been great. It is not meant to be like that. But so many things have been so good for us that, you know, we need to, you know, that is one is count your blessings. Second lesson that I have learned is that be always thankful. That sense of gratitude. You know, we will चढ़ाओ प्रसाद, we will, अरे भगवान, my exams are coming, आज मेरा निकाल देना, मेरा ये कर देना. We bribe God. We try to, you know, अरे वो चढ़ावा दे देंगे, ये चढ़ावा. किसको चढ़ाओगे? जो सबको देता है उसको तुम क्या दोगे यार? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे एक सूफी संत की बात याद आ गई. उन्होंने कहा कि मैं तेरी बंदगी इसलिए नहीं करता हूं कि मैं तुझसे डरता हूं. मैं तेरी बंदगी इसलिए नहीं करता हूं कि मैं तुझसे डरता हूं. मैं तेरी बंदगी इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे तुझसे कुछ उम्मीद है. मैं तेरी बंदगी इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे तुझसे कुछ उम्मीद है.
मैं तेरी बंदगी इसलिए करता हूं क्योंकि तू बंदगी के काबिल है। क्या बात है। It is that spirit, that sense of gratitude to everybody, each and everybody. हम लोग प्रेयर कर लेते हैं, ये मुझे चाहिए, अरे प्रभु जी आज एफडीपी में बढ़िया धुआंधार हो जाए मेरा भाषण। उसके बाद अगर भाषण लोगों ने कहा, अरे वाह वाह साहब क्या, अरे तुम्हारे जुबान पे जब तुम बैठते हो, वो माँ सरस्वती आके जब बैठ जाती है, उसके लिए थैंक यू बोला क्या? उसके बाद थैंक यू बोला? डिड यू थैंक यू हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रेड, आवर एटीट्यूड। हर एक व्यक्ति से मेरी आदत है, मेरा जो ऑफिस में, मैं जो ऑफिस बॉय लाके मुझे पानी भी देता है तो मैं कहता हूँ थैंक यू। कहेंगे कि क्यों, अरे तुम कुलपति, वो ऑफिस बॉय, कहता हूँ थैंक यू, थैंक यू। मेक थैंक यू ए पार्ट ऑफ योर हैबिट। थैंक एवरीबॉडी। उससे कुछ नहीं जाता है, कहेंगे अरे वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है। वैसे तो भारत का फौजी भी अपना ड्यूटी ही कर रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको राशन मिल रहा है, उसके परिवार में शहीद हो जाए तो उसको जो है कंपनसेशन मिलता है, वो तो जॉब कर रहा है। फिर हम थैंक यू क्यों बोलते हैं? थैंक यू इज एन एप्रिसिएशन, a sense of gratitude, that's important. Yes, thank you so much. ये thankfulness, ये counting your blessings is very important. Believe me, it will bring about change in your life. मैंने inaugural session में जब बताया तो मेरी एक बात को सिस्टर शिवानी को भी अच्छा लगा। मैंने कहा था कि it is not the chair, it is the cheer that bring to your face and to that of the face of others. आप दूसरे का कितना मुस्कुराहट ला सकते हो दूसरे के चेहरे पर, which is important. कई बार हम लोग शाम को बैठते हैं कुछ ऑफिसर्स के साथ, कई लोग कहते हैं अरे फलान ऐसे थे, उनके जमाने में खौफ हुआ, लोग डरते थे। क्यों ऐसा, क्यों? वो कोई आदर्श स्थिति है? अगर ऐसा है तो I want to meet people, let people come and meet. लोग इसलिए कुछ लोगों को मिलने से अवॉइड करते हैं क्योंकि कोई कुछ मांग न ले। अरे उस ऊपर वाले ने तुम्हें काबिल बनाया है किसी को कुछ देने का। बी थैंकफुल। हर एक को दिया है उसने कि तुझे मौका दिया कुछ देने का, कुछ करने का। तुम्हारा तो ये रहा तेरा टेस्ट शुरू, एग्जामिनेशन शुरू, देखते हैं तू कितना देता है या तू कितना लेता है। लोग समझते हैं ये देने का, ये तो ये जो एटीट्यूड है, व्हेन आई लुक बैक, मेरे लिए कितना आसान है। इस देश का नहीं, समाज का, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया चीज है बैठ के आगे क्रिटिसाइज करना, सबको क्रिटिसाइज करो। मेरे से उत्तम तो कोई है ही नहीं। तो अमिताभ बच्चन ने मासी से जिस तरीके से सिफारिश की अपने दोस्त की, वैसे ही कर रहे हैं। अरे कैसे लड़का अच्छा, ये जो है किसी के बारे में अच्छा नहीं रही है। हमारे परंपराओं में हमने इस बात को माना है कि ह्यूमन बीइंग मतलब देयर आर shades of gray in each one of us. हम
बताते हैं कि वे बुराई के प्रतीक हैं, लेकिन वो शिव भक्त थे। शिव तांडव स्तोत्र लिखा, बात की भी हम लोग तारीफ करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी देश में हो सकती है, इसी देश की परंपरा में हो सकती है, जहां जिस व्यक्ति को हम खलनायक मानते हैं उसके अंदर भी हम गुण देखते हैं। जब बुरे से बुरे व्यक्ति में हम गुण देख सकते हैं, तो हमारे बीच में तो साधारण व्यक्ति हैं जो ना बहुत बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं, उनमें क्यों नहीं करते हैं कि भाई उसके अंदर भी कुछ गुण है। हम लोग चर्चा करते हैं प्रशासन में, कहीं भी यहाँ रहा हो या जहां भी मैं प्रशासनिक पद पे रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कि उस एंगल में वो ठीक नहीं हो, लेकिन उसके अंदर ये यू नो आई आइडेंटिफाई दैट क्वालिटी इन हिम, कि भाई देयर इज दिस क्वालिटी इन हिम, ये तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका ये हो सकता है कि उसका एक विचार इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आई ऑलवेज एड ए राइडर, बस मानना पड़ेगा उसको, अगर कोई काम दो तो करके दिखा देता है। लेकिन आपने किसी को बिल्कुल ही काला पेंट कर दिया, इसमें तो कोई गुण हो ही नहीं सकता। एंड दिस इज व्हाट वी डू विद आवर चिल्ड्रन, वी डू विद आवर फ्रेंड्स, वी डू विद आवर रिलेटिव्स, वी डू विद आवर कोलीग्स। ये तो किसी काम का है नहीं। जब 100 लोग ये तय कर लेंगे, अरे हाँ बिल्कुल बेकार आदमी, कोई बॉस आएगा पूछेगा, नया आदमी आएगा पूछेगा कैसा है, अरे बिल्कुल बेकार आदमी, आपने उसको सर्टिफिकेट, और जब 10 बॉस का कार्यकाल निकल जाएगा, आजमाया ही नहीं, आपने उसे कभी एक मौका दिया ही नहीं अपने आप को साबित करने के लिए, आपने तय कर लिया, क्योंकि किसी बॉस को उसकी नाक पसंद है। मुझे किसी ने बताया कि आप लोगों को खाली बिठाया करो, कुछ मत दो जिम्मेदारी। मैं कहा इसलिए, कह रही कि वो इसलिए कि ऐसी सजा दी जाती, सजा थोड़ी है, आप तो उसको हॉलिडे दे रहे, उसमें सजा कहां है, संस्था का पैसा खर्च हो रहा है। खाली बिठाना कोई सजा थोड़ी है, कोई और काम ढूंढ लेगा फिर, तो 2 लाख प्लस हो जाएगा उसका, तो खाली थोड़ी कोई बैठेगी। ये जो सोच है, यू नो दैट let us look at somebody holistically, not in parts. Let us look at individuals not in parts but in the whole. एक व्यक्ति को पूरे उसमें आप आंकलन करते हैं। मुझसे अभी चर्चा हो रही थी, मुझसे पूछा किसी ने कि क्या आप गांधी जी, तो सच में आपके कुर्सी के पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई है, आप उनको महात्मा मानते हैं क्या? वाकई वो महान थे। मैंने कह दिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो परमात्मा थे, मैं इतना ही कहता हूं वो महात्मा थे। उनमें शायद कुछ कमियां भी रही हो, क्योंकि वो इंसान थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जो हम सबसे बहुत श्रेष्ठ थे, इसलिए वो महात्मा है। इट इज वेरी इजी यू नो, कि आप बैठ के क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज एवरीबडी विदाउट लुकिंग एट। अभी मैं कार्यक्रम में गया था, हमारी सहयोगी आरती जी के जो है पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, वहां एक बहुत बड़े जो विशिष्ट अतिथि आए थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर शेर सुनाया। वो उनके पिताजी ने ही कभी बताया था और उसको दोहराया। वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने, जो वहां से मैं सीख के आया, मैं हर जगह जाता हूँ कुछ सीखने का होता है।
कि तेरा मकान भी शीशे का, मेरा मकान भी शीशे का, कुछ तू भी सोच, कुछ मैं भी सोचता हूं। तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, कुछ तू भी सोच, कुछ मैं भी सोचता हूं। ये हम भूल जाते हैं कि हम सब शीशे के अंदर, हम सब, और हम सबके पास पत्थर है। वो इंतजार कर रहा है आपके पत्थर का, उसके पास स्टॉक रखा हुआ है, तुम मार, फिर मैं मारता हूं। इसलिए ये कहना कि हम किसी के बात को मान के दूसरे व्यक्ति के बारे में, अभी साध्वी जी शुरू में देवी माँ कह रही थी कि हम अनजान लोगों के बारे में भी हम अपना एक मत तैयार करें। क्यों भाई, मैं जानता ही नहीं उसे, मैं कभी मिला नहीं। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर वो आपको पसंद नहीं करते, कौन, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, वो मुझे जानता नहीं है, मैं कभी उसे मिला ही नहीं हूँ, वो मुझे कभी मिले नहीं। मुझे एक फिल्म में वो मुन्ना भाई MBBS, उसमें शॉर्ट वो सर्किट है, सर्किट अरशद वारसी का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, कहता मेरे और राष्ट्रपति के बराबर के संबंध। तो कैसे बना, ना मैं उनके घर जाता हूँ ना वो मेरे घर, बराबर के संबंध। तो अब अगर यही बात है तो फिर मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपके बारे में व्यूज लेके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है अरुण खोबरे जी ने बता दिया, पचारिया जी ने बता दिया कि वो ऐसे हैं। प्लीज ऑलवेज इन रिलेशनशिप्स, उसको मैं नहीं जानता उसको हिंदी को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करूं, पर वो कहते हैं कच्चा कान, वो नहीं होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कच्चा कान, आई मीन किसी को भी सुनना और उसके बात को मानना, कान के कच्चे जिसको कहते हैं ना, कान के कच्चे, पूर्वानुमान लगा पहले से नहीं, आपने किसी ने कह दिया आपने मान लिया। मैंने जीवन का नियम बना रखा है कि मैं ऐसे किसी तरह, आई बिलीव इन मीटिंग द पर्सन, एंड मेरा अपना असेसमेंट मैं करता हूं, किसी और के असेसमेंट के आधार पर मैंने आज तक जीवन में किसी को जज नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और का असेसमेंट गलत हो सकता है, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं खुद असेस करना चाहता हूं। वो हर विषय के आप मुझसे पलट के पूछ सकते हैं कि अब जहर पीने से आदमी मर जाता है, ये तो पता है, फिर आप जहर पीना चाहेंगे क्या? तो मैं हर व्यक्ति को जहर क्यों समझूं? जहर की बात अलग है, लेकिन व्यक्तियों के बारे में ऐसे क्यों समझूंगा? मैं खुद देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। जीवन का इतना अनुभव है, ना कच्चा खिलाड़ी नहीं, इतना जल्दी गच्चा नहीं खाऊंगा, तो देख लिया, देखेंगे। सो हैव योर ओन जजमेंट्स। एक और बहुत फिल्में देखता हूँ, फिल्मों का शौक, इसलिए कई फिल्म जूरी में भी रहा। एक फिल्म में सलमान खान के बारे में कहते हैं कि सुनता सकती करता, कौन सा खंड है? पांडे से ही पूछ लेते, सुनो सब, लेकिन यूज योर माइंड, डोंट लेट अदर्स ऑपरेट। कोई और आपको मैनिपुलेट करें, ऑपरेट करें, ये अपना असेसमेंट
व्यक्तियों के बारे में, जीवन के बारे में। यू हैव टू, बहुत यंग एज में एक छोटे से इंसिडेंट जिसका कुछ लेना देना नहीं है, ये वैसा नहीं है जैसे गांधी जी को पीटरमैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन से उठा के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से फेंक दिया था। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने मुझे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से फेंक दिया पीटरमैरिट्सबर्ग में, मैं वैसे ही जो है उनको भी उठा के फेंकूंगा भारत से। ये उनका संकल्प। मेरे जीवन में हम उतरे गांधी जी जैसे बड़े लोग नहीं, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें जीवन में इतना सोच में परिवर्तन ला देती है। मैं एक बार कहीं बस में जा रहा था, तो एक छोटी सी बस स्टॉप है, वहां आमतौर पर गाड़ी रुकती नहीं। मुझे कईयों ने कहा कि साहब आप बड़े वाले बस स्टैंड में उतरना, वैसे तो छोटी बस स्टॉप उधर है लेकिन बस वहां रुकती, बस वाला बड़े बस स्टॉप पे ही रुकता है। तो मैं बड़े बस स्टॉप, छोटा बस स्टॉप जैसे ही आने वाला था, मैं वो ड्राइवर के पास आगे की सीट के पास गया। उसने बड़े अनजाने में बड़े फलसफे की बात कही, फिलॉसफी की बात कही, उसने दर्शन की बात की। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भैया इस छोटी स्टॉप में रुकोगे क्या? उसने इतना ही कहा, रुकवाओगे तो रुकूंगा, रुकवाओगे तो रुकूंगा। बहुत सिंपल सिंपल सी बात। अब मैं पहले ही ये सोच के बैठ जाता कि नहीं ये तो रुकेगा नहीं, क्योंकि किसी और ने कहा था। तब तो मैं बड़े स्टॉप में उतरता, वहां से 3 किलोमीटर पीछे चलता। अब मैंने बोल दिया रुकवाओगे तो रुकूंगा, तो मैंने कहा फिर रोक, और उसने रोक दिया। उधर 3 किलोमीटर बच गए, क्योंकि किसी और को सुनता तो शायद खुद हम अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। इसलिए मेक योर ओन जजमेंट्स इन लाइफ। ये मैंने अपने लाइफ में एक किया है कि जो भी फैसला होगा ठीक गलत, उसमें एक सेटिस्फेक्शन होगा। वरना जो ना हम ब्लेम गेम कर देते हैं तुरंत, तुमने कहा था इसी वजह से। 90% घरों में झगड़ा इसी बात को लेकर। मैंने कहा मतलब बच्चा गिर गया, अरे बच्चे को तो उठा जो गिर गया। मैंने तुमसे कहा था ना इसको ऐसे लेके मत चलना। वो कहते तुमने कब कहा था? मैंने कहा था, तुमने जबरदस्ती उसको ये करा दिया। शुरू वहां वो बच्चा गए बोल के रो रहा है, नीचे पड़ा हुआ। अरे उसको उठा पहले, उसको नहीं उठाना है, पहले ब्लेम गेम। ये ब्लेम गेम से हम कैसे बच सकते हैं? टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं भी कभी कभी ब्लेम करने लगता हूं, फिर अपने आप को रोकता, ये भी क्या करता। हम लोग शासन प्रशासन में बैठते हैं तो तुरंत किसी के ऊपर ब्लेम करना, अरे आपको भी पता नहीं चलता, आपकी वजह से नहीं। वो गलती हो जाती है, काम करने वाले ही गलती करते हैं, काम नहीं करने वाले तो कभी गलती करेंगे नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में हर जगह अच्छी बात मैं सुनता हूं तो मैं जानता हूं कि वो आदमी ने जीवन में कुछ किया है। मैं पूरी तरह निश्चिंत हो जाता हूं। एक आदमी के बारे में कोई कहता है अरे साहब कमाल का आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, तो बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ अपने कमरे में बैठ के जो है फ्रूट चाट और जूस पीते थे। अच्छा आदमी था, फैसला नहीं लिया बस। इसलिए ये फैसला लेने वाले को गाली पड़ेगी, क्योंकि आपने फैसला लिया है। हो सकता है कि उसमें 4 लोग खुश हो जाए, 8 लोग नाराज हो जाए। तो इसलिए एक और नियम मेरा जो एक्सपीरियंशियल लाइफ लेसन में है कि आई रियलाइज्ड लॉन्ग टाइम बैक दैट आई कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी। मैं हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। आधी जिंदगी हम लोगों की इसी चीज में चली जाती है, हम सबको खुश करना चाहिए, और उस चक्कर में हम किसी को खुश नहीं करते। ये सब अपने अनुभव से
आई एम श्योर कि आप में से 90% लोगों को ऐसा अनुभव है, लेकिन शायद मेरा अनुभव इसलिए अग्रवाल साहब ने महत्वपूर्ण समझा क्योंकि मैं बोलती हूँ। लेकिन this is a reality. You cannot make everybody happy in your life. I also realized a long time back what Swami Vivekananda had said in one of his lectures. And that is, when you say or do anything new, you will have to pass through 3 stages. The first stage is ridicule. People will ridicule you, make fun of you, mock at you. They will say, "Hey, rubbish, what is he trying to do? Professor Agarwal, NEP लाके तो दिखाओ, हम भी देखते हैं कैसे NEP आता है। अरे ऐसे न जाने कितने कुलपति आए गए, कितने DG आए गए, कितने CM आए गए, कितने PM आए गए, स्टैंडर्ड डायलॉग्स है सब। But when they realize that you are determined in life, then comes the next stage, and that is opposition, vehement opposition. आपका विरोध करना शुरू करेंगे, आपके खिलाफ प्रदर्शन शुरू होगा, आपके खिलाफ साजिशें बनेंगी, आपके बारे में खबरें छपवाई जाएंगी, बहुत कुछ होगा। और फिर आता है फाइनल स्टेज, उसको स्वामी विवेकानंद ने कहा है एक्सेप्टेंस। वही जो कल तक गाली दे रहा था, मजाक उड़ा रहा था, वो कहेगा मुझे पता ही था, होनहार वीरवान के होठ चिकने पर वो पैदा ही हुआ था, तभी मैं समझ गया था कुछ बड़े काम करने के लिए। पहले वही लोग होंगे, साहब कमाल है। अब आई हैव सीन दीज थिंग्स पर्सनली, क्योंकि सडनली जो लोग, मैं अलग अलग पदों में रहा हूं, एक पद से निकला, थोड़ा सा गैप आ गया दूसरे पद के बीच में, तब तक कई लोगों ने कहा अरे यार किस्मत से मिल गया ना, देखो कुछ नहीं, बस फुस टाए कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद पता चला कि कुछ और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। हमें तो पता ही था कि बड़ी जिम्मेदारी तलाशी जा रही है सबके लिए। वो तो अभी ये हाथ लगा, वरना तो अभी गवर्नरशिप खाली पड़ी हुई थी, उसी में आने वाले थे। ये मनुष्य की प्रकृति। ये होगा जब आप, अंग्रेजी में वो कहते हैं, वो शब्द कहना अच्छा नहीं है लेकिन मैं उसको थोड़ा डाइल्यूट करके बताता हूं, उसको कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। ऑर्फन नहीं है उसका एक्चुअल सेइंग में, वर्ड कुछ और है, लेकिन फेलियर इज एन ऑर्फन। फेलियर वाले को तो कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, कामयाब आदमी को। लेकिन हमारे देश की परंपरा, फिर मैं उस परंपरा की तरफ बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में हमने छठ पूजा मनाई, और छठ में हम ढलते सूरज को भी अर्घ देते। ये परंपरा मात्र हमारे देश में, पूरे विश्व भर में चढ़ते सूरज हमारे यहाँ भी, लेकिन यहाँ ढलते सूरज को भी, इसलिए बड़े बुजुर्गों को हम सम्मानित करते हैं हमारे समाज में, हम उनका आशीर्वाद देते हैं। वो जब बोलने आते हैं तो हम कहते हैं उनका आशीर्वचन। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, इसलिए नहीं कि कोई रिटायर हो गया तो कल से लेकर वो बिल्कुल बेकार आ, वो आज पद से हट गया तो फिर
वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये हमारी परंपरा कभी रही नहीं। दिस हैज बीन आवर हिस्ट्री। हमारा एक मुल्क है जहां हमारे यहाँ जितने भी हम अपने यहाँ जितने गोत्र हैं वो सब ऋषियों के गोत्र के साथ जुड़ते हैं। हम किसी राजा महाराजा धन्ना सेठ के साथ कभी भी कोई कुबेर गोत्र का नहीं है क्या? वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, कश्यप है, कोई कुबेर गोत्र नहीं है। तो इस तरीके से कोई राजा के साथ नहीं है, संत के साथ ही हमने जोड़ा हमेशा अपना गोत्र। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर जो है कोई भी चीज को लेकर you should always remember that success and failure, it is part of life. Today, so that is when I say that when you get a chair, ensure that you bring cheer to others. वो आपके चेहरे में अकेले नहीं होना चाहिए। उनको आप तो बैठ के जूस पी रहे हैं, वो जूस दूसरे को मिल रहा है या नहीं, क्या उधर रखकर आपसे यथासंभव, नियम है, कई चीजें हैं, हर चीज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां रख के आपका प्रयास है कि जितने लोगों की समस्या है उसका मैं निराकरण कर सकता हूं, क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं फायदा पहुंचा सकता हूं। नियम ऑब्स्ट्रक्शन के लिए नहीं बने हैं, नियम फैसिलिटेशन के लिए बने हैं। लोग हर जगह नियम कोट करते हैं, वो नियम इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। हाउ डू यू इंटरप्रेट दोस रूल्स? यू कैन ईदर इंटरप्रेट देम टू ऑब्स्ट्रक्ट समबडी or to facilitate. Can you facilitate that? That should be the objective. How to facilitate it? So when I look back, I would like to from my young age, I have been criticizing everything. But today, when I got an opportunity, did I bring about any change? जब मुझे अवसर मिला तब मैंने कुछ बदलाव लाया क्या? या मैं भी वहां बैठ के और आलोचना करता था? मेरे लिए ये यादस्टिक। आज मैं पलट के देखता हूं अपने दूसरे प्रीवियस जगह में, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ काम किया था। इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। मैंने जहां भी काम किया है, इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। हाँ, मैं सिर्फ तनख्वाह नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को फैसिलिटीज नहीं प्रदान कर रहा था, मैंने कुछ किया है उस संस्था के बेहतरी के लिए, उस संस्था के लोगों के बेहतरी के लिए भी मैंने कुछ किया। That is my legacy. My legacy is not, what I did, the favor I did for some people. My legacy is what I did for the institution. Did I contribute to the institution? Everybody does it for himself or herself. वो तो सभी करते हैं। What is the big deal? आप सब जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, अपने परिवारों की बेहतरी के लिए सोचते हैं, लेकिन जिस संस्था में आप लोग अपने परिवार से ज्यादा समय देते हैं, जीवन का समय हम ज्यादा संस्था में देते हैं। रात को तो आप सो जाते हैं, रात को 8 घंटे आप सोते हैं, सुबह आप 2-3 घंटे घर में जगे होते हैं, शाम को आप 2-3 घंटे जगे होते हैं, 6 घंटे, 8 घंटा तो मिनिमम तो आपका ऑफिस में है। जिस संस्था में जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरा निकलता है, उस संस्था के लिए मैंने कुछ किया या वहां भी बैठ के सिर्फ अपने लिए किया? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आज नहीं फील होगा,
ये फील होगा। मैंने कई लोगों को देखा है, बड़े बुजुर्गों को, जिनके साथ जब मैं बैठता हूं तो रिग्रेट करता हूं। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिन्होंने कहा कि मैं जीवन भर कंजूसी करता रहा कि पेप्सी पीने का मन होता था नहीं पीता था, कोक पीने का मन होता था नहीं पीता था। सोचा कि थोड़ा पैसे आ जाएं तब मैं खूब कोक पेप्सी पीऊंगा, खूब मिठाई खाऊंगा। लेकिन आज जब पैसे आ गए तो साथ में डायबिटीज भी आ गई। अब नहीं कर पा रहा हूं कुछ भी। What a tragedy. What a tragedy. So when you got the opportunity, you did not do anything. Then you will sit और बैठ के, अरे पीएम देश ठीक से नहीं चला रहा है, सीएम ठीक से नहीं चला रहा, डीएम ठीक से नहीं चला रहा। आपने चलाया ठीक से? आपको जब मौका मिला, आपका डिपार्टमेंट आपने चलाया क्या? आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो आपने किया क्या? सवाल नहीं। Now, this is something which one should always remember. वैसे तो इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुस आपके बीच में आए और उन्होंने बातें कही, लेकिन मैंने भी हमेशा ये माना है, अभी साध्वी जी का भी मैं सुन रहा था, मैंने भी यही माना है लाइफ में, मेरे अनुभवों के आधार पर, that yesterday is a cancelled check. Yesterday is a cancelled check. Tomorrow is a promissory note. Tomorrow is a promissory note. Today is cash. Today is cash. That cancelled check has gone. It's cancelled. Tomorrow is only a promissory note. You are not sure whether you will get the money for that or not. This cash is in your hand. How do I handle my today? Or am I wasting it thinking about yesterday? Or am I wasting it planning for tomorrow? Am I utilizing my today? मेरा आज, इसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं, या बस कल जब मैं बैठूंगा उसकी बैंड बजाऊंगा, जब मैं उस कुर्सी में बैठूंगा उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। कोरोना ने हमें दिखा दिया कि तुम पूरी तैयारी करो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। बड़े बड़े रईसजादे, बहुत पैसे वाले, the most affluent people were gasping for breath. They could not, with all the money in their wallet, they could not arrange for an oxygen cylinder. नहीं कर पाए। So what are you waiting for? What are you waiting for? This cash is in your hands. So either you can use it to destroy others, to ruin others, to create problems for others, or to do something good. That is something that you should keep in mind. I have not brought any notes. I'm just speaking spontaneously. Because there are so many lessons I have learned along the way, that I feel that, I try to live it, most of them. For example, I realized long time back that I cannot change the world. Long time back. Like a young man, when I was young, I was also a revolutionary. क्रांतिकारी, सब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि if there is one thing that I can change,
That's myself. Nothing else. I cannot change even the attitude of my children, my family members. So when I cannot change all that, then why don't I follow Gandhiji, who said that be the change that you want to see in others? Be the change that you want to see in others. Try to bring that change in yourself. Can you? Yes. That is something that I believe. We won't be able to change the world. Nobody has been able to change the world. कई लोग आए, सिकंदर ने पूरे दुनिया को कॉन्कर कर दिया, और बड़े बड़े आए, बस कुछ साल रहे और खाली हाथ वापस लौट गए. But if they change themselves, then Siddhartha changed himself and became Buddha, the enlightened Buddha. He was able to change the whole world because he changed himself first. The change has to begin with you. That's rule number 1. The change has to begin with you. 2, very important. Don't wait for any muhurat to bring that change. नवंबर हो गया, चेंज अब मैं नए साल में करूंगा, जनवरी 1 तारीख बहुत ऑस्पिशियस है. नहीं अभी तो अच्छा, तो त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, एक बढ़िया दिन देख के हम चेंज करते हैं. चेंज उस दिन से शुरू. Change has to begin with you, and the change has to happen now. Yes. Not even tomorrow, not today, but now. The change will be. अच्छा, आज शाम को थोड़ा कुछ लोगों को गाली देना बाकी था, तो 2-3 घंटे में वो गाली निपटा लूंगा, उसके बाद में फिर उसको शिकायत रह जाएगी कि मैंने उसे दी नहीं. If you decide to change, change. This has to be. A very important fact which guided me in my life is faith. Faith is very important. Faith can move mountains. Now you'll ask me, am I promoting, preaching religion or anything like that? No, not any particular religion, not any particular God, divinity, deity. You can call it the absolute, you can call it by any name. But believe. I'll come to the different dimensions of belief. But believe. And that belief will give you a lot of sociological and psychological, I have reasons to defend that. I'm not here to defend anybody. I believe that honestly, if there is no God, then we need to create one. Because we all as human beings need to believe. Because when you don't believe, you tend to blame yourself for everything. आप पूरा जीवन आत्मग्लानि, आत्मगुनाह मेरे वजह से हुआ. I suffered from this, believe me. When my mother was in hospital and I could not save her, I blamed myself.
घंटों में दरवाजा बंद करके बैठता था और बोलता that I could not save my life. I held myself responsible. I held the hospital responsible. I held the doctor responsible. I held everybody responsible. But the day I outsourced, क्या बात, outsourced beautiful word. to believe that it is His will, क्या बात, बहुत अच्छा. ये उसकी मर्जी थी, उस दिन मैं गुनाह मुक्त हो गया. क्या बात. That's all. I felt कि वो उसकी मर्जी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अपने आप को ब्लेम करने से, हॉस्पिटल को ब्लेम करने से, I knew that my mother will never return. मुझे मालूम था कि मैं वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन जिस दिन मैंने ये मान लिया, and that is belief, कि उसकी मर्जी थी, शायद कुछ था, कुछ टेस्टिंग था, कुछ परीक्षण था, विधि का विधान इसलिए बोलते हैं सर, उस समय जाए. वो उसको दिल से, you have to accept it from inside, not for saying, वो तो किसी की भी मौत हो जाती है, क्या कहें साहब, विधि का विधान, वो नहीं, you have to accept it from inside. क्या बहुत. That is the fundamental difference. Yes. मैंने प्रयास किए, मैंने वेंटिलेटर्स लगवा दिए, बेस्ट डॉक्टर्स लगवा दिए, सारा कुछ किया, I could not save her. There is not one day when I don't remember. She is in my prayer with me. But it's been now 21 years since she left. More than that. But I felt that it is His will. It was not designed to be so. जैसे मैंने प्लान किया था वैसा नहीं. The second important aspect I realized, and that is what I spoke earlier also. Again, coming back to Swami Vivekananda, because I get a lot of strength from reading Swami Vivekananda. He said that आप 33 करोड़ देवी देवताओं को मान लो, मैं आपको उस व्यक्ति को, I call him an atheist, not because he does not believe in gods. आमतौर पर एथीस्ट या नास्तिक मतलब वो व्यक्ति जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन स्वामी जी ने बहुत खूबसूरत से कहा. उन्होंने कहा था कि आप पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो, उन पर भरोसा रखते हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते तो आपसे बड़ा नास्तिक कोई नहीं. You are the biggest atheist if you believe in all the 33 crore gods, but if you don't believe in yourself, you are the biggest atheist. आप हो नास्तिक. Believing in myself, that I am not inferior to anybody. God has given me the same faculties as anybody under the sun. मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो शक्ति है. और मैंने जो कहा, acceptance, that I cannot change everything. गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक बहुत अच्छा एक उनका सेइंग है. Gurudev Rabindranath Tagore had famously said that God give me the courage to change what I can. God give me the courage to change what I can, and the strength
to accept what I cannot. ईश्वर मुझे वो शक्ति दे जिससे मैं चीजों को बदल सकूं, और मुझे धैर्य दे कि मैं स्वीकार करूं कि वो चीजों को मैं बदल नहीं सकता। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर वी कीप हिटिंग आवर हेड अगेंस्ट द वॉल, because I need to realize that I cannot change. I see so much frustration on the social media. आज के युवा पीढ़ी उन विषयों को लेकर अपना दिमाग खराब करके जहर उगलना और क्या क्या करते रहते हैं, उन विषयों के बारे में जिनके विषय के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ। क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो, क्यों अपना शुगर बढ़ा रहे हो? जो चीज बदल मैं नहीं सकता उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कुछ चीजें जीवन में हम नहीं बदल सकते, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप वहीं रह जाओगे, जीवन में आप नहीं बढ़ पाओगे। आई हैड दिस नेबर, उनके भाई जब वो मेरे नेबर बने, उनके एक यंगर ब्रदर थे, यंग मैन, लेकिन ऑल द टाइम वो ही यूज्ड टू बी ड्रंक। मुझे बताया कि ये बड़े ब्रिलियंट हुआ करते थे, एक जमाने में बहुत सक्सेसफुली कई कंपनीज को लीड किया है, वो है ये है। तो मैंने उनके ब्रदर से पूछा फिर क्या हो गया? कहते कि he separated from his wife. तब से लेकर यही हाल। तो वो कहाँ है आजकल? कहते उसने तो दूसरी शादी भी कर ली, उसके 2 बच्चे भी। कहते उसने तो शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हुए। ये तो वही स्टफ है, ये तो आगे बढ़ा है जीवन, ये वही अटक गया है, सुई की घड़ी वही अटकी हुई। He hasn't gone forward and he's suffering because of that. She moved ahead. She moved on. She also went through the same experience. Both of them had a strained relationship. Both of them she suffered. But she decided to move on. Why haven't you? You should also have moved. भगवान बुद्ध के जीवन में एक कहानी बड़ा सुंदर आता है। वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। अब these stories keep changing, कभी बुद्ध होते हैं तो कभी बोधिसत्व होते हैं, कभी और कोई नाम होता है। But the story is important, not the character. वो कहते हैं भगवान बुद्ध was about to cross a river. उन दिनों तो कोई पुल तो होता नहीं था, जहां बिल्कुल पानी कम होता था वहां से क्रॉस किया जाता था। तो भगवान बुद्ध was crossing with his followers. उस टाइम एक छोटी लड़की, 16-17 साल की लड़की, young girl, she was unable to cross. So the भगवान बुद्ध picked her up और उसको पिक करके नदी पार करा दिया। उसके बाद नदी पार करा दिया, उसने धन्यवाद कहा और ये पूरी टोली जो है ये आगे चल पड़े। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। उनमें से एक उनका जो शिष्य है वो तब से लेकर उस घटना के बाद चुप हो गया, बिल्कुल बंद, बात ही नहीं कर रहा। अब भगवान थोड़े डिस्टर्ब हो गए, अरे बात क्यों नहीं कर रहा? तो उन्होंने क्या किया कि जब एक जगह बैठे वो विश्राम करने के लिए, तो उन्होंने क्या बात, क्या परेशानी क्या है? क्योंकि भगवान कि क्या, ये बस पिछले 8-10 दिन से मैं यही सोच रहा था,
हम लोगों से तो यही बताया गया था कि हमको मोह माया से दूरी रखनी है। लेकिन आपने उस स्त्री को उठाया, आपने अपने हाथों से उठाया और उसको नदी पार करवाया। मगर अभी भी मेरे दिमाग में वही बैठा है। फर्क यही है, मैंने उसे उठाने के बाद नदी के पार उतार दिया, तुम अभी भी उसको लेकर चल रहे हो। फर्क यही है कि तुम अभी भी उसको लेकर चल रहे हो उठा के, मैंने तो तब का उतार दिया और आगे चल रहा। हम भी यही करते हैं अपने जीवन में। हम उन चीजों को जिसको उतारना चाहिए था उसको उतारते नहीं है, उन्हीं को लेकर चलते हैं, जीवन भर चलते हैं। We carry that, अंग्रेजी में उसको कहते हैं we carry baggages। बैगेजेस को लेके चलते हैं। अच्छा, उसने मेरे साथ 10 साल पहले ये किया, निपटा देना उसे। 10 साल से लेकर वो आगे बढ़ चुका है, जो जीवन में कहीं हमारे विश्वविद्यालय में भी कोई है, विश्वविद्यालय का व्यक्ति नहीं है, बाहर का। 20 साल की प्रकरण को लेकर अभी भी केस पे केस लगाता रहता है। अरे जिसके खिलाफ लगा रहे हो वो जीवन में कई मुकाम में पहुंच गए हैं, तुम कहाँ हो? कौन से दुनिया में हो? कौन से लड़ाई लड़ रहे हो? We need to think on these things. What are we carrying, taking forward? Do we need to? Why are we taking that negative force with us? Positivity लेकर चलो। एक और किस्सा सुना के अपने बात को, वैसे तो जीवन भर इतने किस्से यही सुन के पला बड़ा हूं। There was this famous actress in Hollywood, बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस। Once she was staying in a hotel and her jewelry was stolen. She was working with a famous director of the times. So this actress lost all her jewelry in the hotel. It was stolen. She was crying like it. Oh, I lost my jewelry. It was worth millions. I lost it. They were my favorite jewels. So the shoot was about to begin and the director was there and he called and the director was told that, she has lost her jewelry. So the director went there to her and said that, what happened? Oh no, I've lost this. She said, yes. You're a great actress, the director said. I'm nobody to tell you anything. But let me tell you one thing. In life, don't cry over anything that won't cry over you. ऐसे किसी चीज पर दुख या मातम मत बनाना जो आप पर मातम नहीं बनाएगा, आप पर दुख नहीं करेगा। वो ज्वेलरी जिसके हाथ लग गई उसकी हो गई, वो तो आपके लिए रोएगा नहीं, तो आप उसके लिए क्यों रोएंगे? Don't cry over anything that won't cry over you. Will that cry over you? It won't. It will belong to whoever gets it. जिसके भी हाथ लगा उसके हो गए, आप क्यों? गया, खत्म।
So perhaps this is symbolic, ये प्रतीकात्मक कहानी है. This is about relationships. हम अपनी जिंदगी में उन लोगों के बारे में सोच के दुखी होते हैं, रोते हैं, जिन्होंने शायद हमें कभी वैल्यू दिया नहीं. अक्सर हम दुखी होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं. वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको वैल्यू दिया ही नहीं. आप उनको इतना वैल्यू देते हैं, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते हैं, यार उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसने जो किया उसने अपने फितरत के हिसाब से किया, उसने ठीक नहीं किया. The problem is that we judge others by our standards. दिक्कत ये, मुझे पहले दोस्तों को उधार देने की एक आदत थी, अभी भी. मेरे लाखों रुपए लूट चुका हूं. कोई भी आके एक दुखड़ा सुना देता है, मेरे सिस्टर की शादी है, मैंने निकाला. ऐसे न जाने कितने लोग. कई बार रदर ज्यादातर समय वो वापस नहीं आता है. तो एक बार मैं दुखी हो गया था, यंग एज में था, दुखी हो गया था. मैंने अपने एक मित्र से पूछा, मैंने कहा ना, मैं एक तरफ स्वामी विवेकानंद जैसे संतों से भी सीख चुका हूँ, दुनिया भर की इस तरह की कहानियों से भी सीख चुका हूँ, और कभी 90% मेरी लर्निंग ये रोजमर्रा जिंदगी में मैं सीखता हूँ. जैसे उस बस ड्राइवर से बात हुई, ऐसे ही इस व्यक्ति, मेरे एक मित्र से मैंने पूछा, यार बड़ा यार वो पैसा नहीं देता यार, मेरा पैसा है, और मैं जब संकोच है, मुझे अपना पैसा वापस मांगते हुए संकोच है, क्या उसको बुरा नहीं लगता है? पैसा मैंने दे रखा, वो बेशर्म होकर मेरे सामने आके बैठता है, चाय पीता है, मस्ती करता है, सारा कुछ. मुझे पूछने में संकोच हो रहा है, यार मेरे पैसे कब देगा, पूछने में मुझे संकोच हो रहा है. वो तो ऐसे ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल. मैंने कहा कि मांगू कैसे, नहीं क्या करना चाहिए मुझे? मैंने कहा मांग. मैंने कह दिया कि मांगना मेरे फितरत में नहीं है, मांगना मेरे फितरत में नहीं है. मेरे दोस्त ने कहा, मांगे बिना देना उसके फितरत में भी नहीं. तुम अपने फितरत से जज कर रहे हो, उसका फितरत नहीं है. जब तक तुम नहीं मांगोगे वो देगा ही नहीं. वो कहेगा चलो इसके पास बहुत पैसे पड़े हैं. दूसरों को अपने हिसाब से जज मत करो, अपने यार्डस्टिक्स पे डोंट जज पीपल, बिकॉज मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस. वो एक अलग बैकग्राउंड से आया है, अलग संस्कार से आया है, अलग संस्कृति से आया है, अलग परिवेश से, पारिवारिक परिवेश से आया है. उसने पता नहीं जीवन को कैसे देखा है, और आप उसको अपने परवरिश, अपने मापदंड के हिसाब से देख रहे हो. अरे लोग यार, हम घर में गए थे, उन्होंने पानी तक नहीं पूछा. रही होगी उनके गरीब बचपन में पानी की किल्लत, आपको कैसे पता? पानी की किल्लत जिसके घर में रही है, वो पानी दूसरे को थोड़ी पिलाए. अब आप कह रहे हो यार नहीं पिलाए क्योंकि आप पिलाते हो, then you sit in judgment. This is the problem. तो इसलिए it's very important that we start accepting people as they are. इसमें जीवन का बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती है. प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि लोग सब हमारे जैसे. ये दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में इतने करोड़ अरबों लोगों को ऊपर वाले ने बनाया है, और फिर जो है ईच वन इज डिफरेंट, सबकी शक्ल अलग, सबकी, है ना. तो फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि उसकी फितरत, उसका स्वभाव हमारी तरह होगा? नहीं हो सकता. ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि नहीं, वी आर नॉट द सेम इंडिविजुअल्स एंड वी कैन नॉट हैव द सेम एटीट्यूड्स एंड द सेम वैल्यू सिस्टम. वी कैन नॉट हैव, सिंपल. So when we cannot have the same value systems, then how do I expect a similar behavior from him?
इससे आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दुख इस बात को लेकर होता है when there are expectations, and this is the last point. Because I was told it's a 2-hour session, I did not know 2 घंटे क्या बोलूं। सर अभी तो ऐसा लग रहा है आपने शुरू किया है ऑनेस्टली टेल। लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेशन ही जीरो रखो। क्या होता है रियल मिरेकल्स, क्या एक्सपेक्टेशन अगर जीरो लेवल पे शुरू होता है तो एनीथिंग यू गेट इज ए बोनस। मेरा लाइफ का ये प्रिंसिपल रहा। कीप योर एक्सपेक्टेशंस एट जीरो। मेरे एक पुलिस ऑफिसर दोस्त थे, देखिए कैसे एटीट्यूड में डिफरेंस है। हम लोग साथ में बैठे हुए थे, अपने पुलिसिंग का एक्सपीरियंस और सारा कुछ बता रहे थे, वेटरन है पुलिस। उन्होंने कहा लुक सुरेश जी, यू नो, अच्छा वो पुलिस नहीं पैरामिलिट्री के थे, तो कश्मीर वगैरह में पोस्टिंग उनके रहती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि रोज कैसे डील करते हो यार, हाउ डू यू डील विद इट, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। यस, बिकॉज इन अ कॉमन मैन्स लाइफ यू होप फॉर द बेस्ट and are prepared for the worst. You hope for the best and are prepared for the worst. आप अच्छे की उम्मीद करते हैं और बुरे के लिए तैयार हैं। But in our lives, we hope for the worst and are prepared for the best. हमें उम्मीद ही है कि बुराई होगा, फायरिंग होगा, गोलियां चलेगी, एनकाउंटर होगा, ब्लास्ट होगा। आज सुबह निकले हैं तो शाम को घर पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं, ये मान कर ही चलते हैं। अगर शाम को घर पहुंच गए तो बोलते हैं कि बोनस, आज आ गए वापस घर, कहते हैं कि आज वापस आ गए, क्योंकि उम्मीद से के साथ नहीं गए थे कि शाम को लौटेंगे। उड़ा दिए जाएंगे, स्नाइपर फायर में मारे जाएंगे, एम्बुश हो जाएगा, पूरा भरोसा होता है और एक दिन ऐसा हो भी जाएगा। लेकिन ये पता है, तो वी ऑलवेज होप फॉर द वर्स्ट। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में अगर ये हो जाए तो लाइफ विल बी मच मच मोर ब्यूटीफुल। वी होप फॉर द वर्स्ट, बुरे के लिए उम्मीद बुरा हो जाएगा, देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। आई थिंक दैट अगर हम तैयार हैं वो तभी हो सकता है when we are least expectations। एक्सपेक्टेशंस को अगर जीरो में रखोगे, अगर मैं हर चीज एक्सपेक्टेशन के साथ करता हूं कि मैं सामने बॉस आ रहा है, बॉस को नमस्ते बॉस, इसलिए क्योंकि मेरा एसीआर आपके पास आया हुआ है, इसलिए क्योंकि मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, इसलिए, तो फिर वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। अगर एक्सपेक्टेशन के बगैर कर रहे हैं, हो जाता है, नहीं होता है तो भी यार वो मेरे बॉस हैं, मैं इसलिए नमस्ते कर रहा हूं, ही इज माय सीनियर, मैं इसलिए नमस्ते कर रहा हूं। तो जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ आप कर, किसी के साथ अच्छी तरह बात कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ उम्मीद है, इसलिए क्योंकि ये मेरा नेचर है अच्छी तरह बात करना। अगर आप इस जाओगे तो ज्यादा निराशा नहीं है। फ्रेंड्स, इतना कुछ है बोलने के लिए, बट दीज आर एक्चुअली हार्श रियलिटी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा आपका मुस्कुराता हुआ ये चेहरा ये बोलते हैं, एंड बिलीव मी इट्स नॉट शो ऑफ, आई एंजॉय लाइफ। दिखाने की जरूरत नहीं, आई डोंट हैव टू हैव अ पुट ऑन, मैं जो हूं, क्योंकि ज्यादा दिन मुखौटा जो है वो टिकता है। मैं पिछले अपने 35 साल के पब्लिक लाइफ में ऐसे ही हूं, किसी और तरीके से लोगों ने मुझे कभी जाना ही नहीं। और कोई भी मुखौटा 35 साल नहीं पहन सकता है, वो 35 दिन पहन सकता है, 35 घंटे पहन सकता है।
Be real. Be what you are. Otherwise, जब आपका असली रूप दूसरों के सामने आता है तो बड़ा खौफनाक होता है। उस दिन रिश्ते खराब हो जाते हैं, मोह भंग हो जाता है और आप अपने लिए बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लेते हैं। So be what you are. Be real. Don't put on. Be natural. Be yourself. If you are yourself and not a pretender, much more smoother, much more transparent life. When I don't have anything to hide, मेरा दरवाजा खोल के कभी भी कोई भी आ सकता है मेरे ऑफिस में। मैं जब डीजी था आईएमसी में, मैंने ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट को बंद कर दिया। मैंने कह दिया कोई कभी भी मेरे कमरे में आ सकता है, कुछ छुपाने के लिए है। मेरे कमरे में मेरे ये पीए बैठे हुए हैं इधर, मेरा एक भी अलमारी मेरा ताला या मेरा चाबी नहीं है। मेरे घर में मेरे डायरी, मेरा लॉकर किसी में मैं नहीं चाहता, इसलिए टेंशन फ्री। जितना बंद करके छुपा रखूंगा मेरा, be transparent as much as possible. Be what you are. I can assure you that you will be a happier soul. You will be a relaxed person, and it will contribute to your success also. On that note, thank you for your patience, for listening to me. I tried to share some of my thoughts. कुछ चीजें जो मैंने कभी कहीं नहीं बताई है, ऐसे भी मैंने कुछ बातें आपके साथ साझा किया है, क्योंकि नकली कहानी बताकर या झूठ बोलकर मैं आपके सामने जो है, मैं कम से कम आपको प्रेरित करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। And I thought that I should tell you what comes from the heart. Nothing has come from कोई नोट बना के या ये बोलना है या गूगल सर्च करके कि डेल कार्नेगी ने क्या कहा था मोटिवेशनल, ये पढ़ के नहीं आया। I thought that I will share my actual life experiences. For me also, thank you Professor Agarwal and Sunita ji and your team. ये शायद I've been a public speaker for a long time. सिर्फ इस कोरोना के समय में मैंने 550 के करीब मैंने वेबिनार्स ये अभी इकट्ठा किया है। अरुण खोबरे ने काफी कुछ, बाकी अंकित भी बताते हैं मुझे कि कोरोना पीरियड में मैंने 550 लेक्चर्स, वो ऑफिस का नहीं, बाहर के अक्रॉस द कंट्री मैंने डिलीवर किया है। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड। दिस इज समथिंग दैट आई नेवर, क्योंकि मैं आमतौर पर मीडिया मास कम्युनिकेशन विषय पर ही, और मैंने अपने आप को कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर या इस टाइप से ना प्रोजेक्ट किया, मैं हूं नहीं, ना कोई स्पिरिचुअल हीलर हूं, मैं स्पिरिचुअल गुरु हूं। लेकिन कुछ एक ऐसा मौका मिला, अग्रवाल साहब ने इंसिस्ट किया कि आई शुड स्पेंड सम टाइम विद द पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज इनॉग्रल और समापन में एज पेट्रन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस मेरा बहुत ब्रीफ इंटरवेंशन रहता है, वर्चुअली वेलकम करना और थैंक यू करने तक ही रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन, इट वाज अ रियल प्लेजर। आई नो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, फिर भी कुछ आपको पूछना है तो जरूर पूछिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बात की जब शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि मैं कोई सैफरन पहनकर या व्हाइट पहनकर आया हूँ, स्पिरिचुअल लीडर नहीं हूँ, लेकिन दर्शन की सारी बातें अपने इस 1.25 घंटे में पूरी रख दी, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू विथ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। हमने विवेकानंद जी को, बुद्ध जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी कोट किया, साथ में चुलबुल पांडे और जय वीरू को भी हमने इसमें कोट किया। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कैजुअल था। दर्शन की सारी बातें जो हमको इंक्लूड करनी थी, फेथ, बिलीव,
ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे इस छोटे से उद्बोधन के अंदर समाहित हुई हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन था टॉपिक को लेकर मुझे, लेकिन कोविड लेसन्स के साथ साथ आपने पूरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और लाइफ लेसन्स की बात की। सो विथ माय हार्ट आई एम थैंकिंग यू on behalf of the entire department and the team of organization of the CFTP. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Dr. Sarita ji. You are not only the team, you are one of the lead in the team. Thank you. I tell you, sir, this has been one of the best time in my life to listen to some of this. I always believed my mother and thanked her for giving her unconditional love. Whatever I am doing, good, bad, Lisa, but that is unconditional love. I always trusted my father, respected my father for sharing unconditionally his experiences, good or bad, honor or dishonor. He always did. And every father in this community or all my friends who are there online, if we club these two together, it becomes guru. तो मैं अपने गुरु को श्रद्धा करता हूं क्योंकि वो मुझे माँ और पिता दोनों का देते रहे, अनुभव भी और प्यार भी। लेकिन वहां भी एक वन टू वन रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ थी। हियर कम्स अ मैन, Professor K.G. Suresh, who is Kula Guru. He is not knowing the person on the other side of the desk. 200 लोग आज यहाँ हैं, फेसबुक पे कुछ है, कोई आंध्रा में है, कोई तमिल में, कहीं तमिलनाडु में है। He might not be knowing who is there, but he is pouring his experience of life openly from the heart. I salute you, sir. That is Kulu Guru. I really feel thankful to this machinery of the government who has chosen this word for Kulpati or Vice Chancellor to call that. You have met with that honor. You have earned that honor. And definitely we are all witness to your transparency. We are witness to your honesty. We are witness to your commitment. And your lesson can definitely bring us to the best part of each one of us. And cumulatively, a better Makhanlal University. Cumulatively, a better Madhya Pradesh. And effectively, a better Bharat. And that is the destiny of this country. We have reached that crescendo, that time when this was destined, and that's why K.G. Suresh is sitting in front of us, opening his heart wide for all of us. We are really blessed, sir. I tell you, we salute you. I tell you, we love you. I tell you, you are our hero. I tell you, we are at the back. You call us in the midnight, and each one is there, not as a duty, but that pride that कुलपति जी ने मुझे ये आदेश दिया है, ये काम दिया है। और ये same thing I would like to share with my friends who are students who are there on the Facebook maybe, or who would be witnessing this video, or who would be going through the e-book or print book that we are planning to bring out from this FDP, because it has been matchless. The stars, the glitters that have come here in this FDP are really matchless. Today, the main speaker in the morning, Devi Ma, was really having a charismatic aura. It traveled through time and space to touch. But when she left and thereafter we were having half an hour, one good friend of ours, Sangeet Verma, when she started, each one was mesmerized in the chair. Right? Arun? Am I right? Yes, sir. उनकी प्रस्तुति इतनी गजब की हुई और उन्होंने इतने रैडिकल बात की सर कि ये अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप दौड़ो दौड़ो दौड़ो, that he might become a prime minister, he might be, but he is losing the life and he belongs to the Aranyak Sanskriti. कपिल जी के शागिर्द है, कपिल तिवारी जी के शागिर्द है ये जो संगीत जी है। So he spoke and in that discussion everything came, tantra came, bhakti came, Nauda bhakti came, and we were all stuck to the chair till full 1 hour. Such has been the session. Before I conclude, I would just like to give one request to all the heads and professors who are sitting here. माननीय कुलपति जी ने, कुलगुरु जी ने जो बात से शुरुआत की थी ग्रेटिट्यूड की, उसके बाद एक एक आयाम जो खोलते चले गए,
Very recently, sir, I met a young man who has designed a 2 hours program for youth, for young, which starts from gratitude, faith, trust, mind building, dancing, jogging, and whatnot. 2 hours का पैक कैप्सूल है उस बंदे का. I love that. Young man है Amol Karale. I requested him on Friday in the morning from 8 to 10. He is going to conduct a session for us. And if you remember, sir, I had submitted. You asked me one day, being a dean of student welfare, do something for students. And then I wrote, I couldn't talk to you because of your so busy schedule. I had sent a note to you that I want to start a 2 hours daily propose. That is this capsule. Okay. I had given the entire schedule कि इसमें क्या क्या रहेगा. इतनी शक्ति हमें देना, दाता से वो बंदा शुरू करता है, डांस होता है, जॉगिंग होती है, जोक्स होते हैं, and he is presenting on Friday. I would request, and Monica ji was going to chair that, but today she has asked an excuse. I would like one of the professors to take up that, to chair it, and somebody should come forward who would be with me to conduct that course in Makerere University for our students. I took the opportunity to invite one of you to be the chairperson for that particular session. This is just मैं अपना मुंह नहीं रोक पाया, मैंने शेयर किया. मूल अगर लौट के आए तो वाकई it has been one of the best feelings to listen to you from the heart, and we all thank you. I just request all my fellow friends to have a standing ovation for our Guru with our thanks and gratitude. Thank you so much. Thank you everyone who is attending this. Looking forward. सर जैसा आपने बोला ना कि इतने सारे मैंने वक्तव्य दिए